Hello students, in chapter 6th, that is metallurgy, we have completed two steps. First is concentration, okay. Second is extraction. In concentration we have discussed various methods by which we have removed the impurities from metal ore, like magnetic separation, froth flotation process, and hydraulic washing, okay. And in extraction there are two methods. First is conversion of metal ores into metal oxide, and second is reduction of metal oxide into metal ore, okay. So these two steps we have done. Third is refining. After that I will tell you some example, okay. So this is most important point. So first method is distillation. So already you know, when there is a difference in the boiling point of two components, then we can separate it by distillation, okay. For example, as I am taking a zinc as the metal, and here are some impurities of cadmium, iron, lead, and I want to remove these impurities. So students, what you observed, there is a difference in the boiling point. Boiling point of crude zinc is 920 degrees Celsius, whereas boiling point of cadmium is 760, and boiling point of iron and lead, it is more than 1500 degrees Celsius. So when we will heat, then what you will get, whose boiling point is low, it will get evaporate. So first of all, cadmium will go, only zinc, lead and iron will left in the container, this one, okay. So as you will heat this container at more than 920 degrees Celsius, so now zinc will go out and lead and iron will left as the impurities, okay. So we can separate the different component by boiling or by heating at different temperature, okay. Second step is liquefaction. Students, liquefaction. So where you will use liquefaction, where the impurities, or you can say where the metal has very low melting point, like tin, lead, mercury, okay. So what you will do, you will take a shaft mean एक स्लोप होगा जो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, मतलब थोड़ा सा ढलान पे रखा होगा, ओके. सो एंड यू विल प्रोवाइड सम ग्रुप्स, मतलब उसके बीच में एक बैरियर ऑब्स्टेकल, एंड हियर यू विल पुट द metal that is impure metal, and you will provide the heat. So metal whose melting point is very low, it will melt and will come down, but impurities whose boiling point is very high or melting point is very high, they will not melt और वो यहाँ पर फंस जाएंगी. दिस इज लिक्वेशन, ओके. सो आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर लिक्वेशन वर्क्स, okay. So what is the principle at which liquefaction works? So you will say a method is applicable for metals such as tin, lead, bismuth, which have low melting point as compared to their impurities, okay. तो impurity का melting point क्या है, यहाँ पर high है, and whereas metal has very low melting point. Next is electrolytic refining. Students, this is very important. So many times this question has asked by the board, okay. So suppose you have impure copper, okay, and you want to make it pure. So first of all, you will convert this impure copper in a rod shape, okay. Then you will take another copper that should be pure. मतलब आपके पास एक तो कॉपर ऐसा है जिसको आपने प्योर करना है, तो आप उसको ले लो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आप उसको ले लेंगे एनोड, और एक जो आपके पास प्योर कॉपर होगा आप उसको बनाएंगे कैथोड. ये दो बात आपने अच्छे से ध्यान से समझनी है. एनोड वाले को क्या बनाओगे आप, वो क्या होना चाहिए आपका इम्प्योर, और प्योर वाला कैसा होना चाहिए आपका, प्योर होना चाहिए कैथोड, ओके. यू विल टेक एन इलेक्ट्रोलाइट, okay. Suppose copper sulfate you have taken, and you will connect it to the battery, okay, and anode and cathode. So what will happen at anode, oxidation will occur. तो ये जो impure copper था, मैं यहाँ पर कुछ impurity दिखा देता हूँ आपको. सपोज कीजिए ये जो हैं ये impurities हैं इसके अंदर. तो what will happen students, this pure copper will lose its electron,
एंड विल कम इनटू द सॉल्यूशन। ये कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, ये इम्प्योर कॉपर जो था ये आ गया सॉल्यूशन के अंदर और अपने इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए और अब वो आ गए प्योर कॉपर रोड पे, यानी कि प्योर कॉपर रोड आपकी नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो कॉपर था इन अपने ही इलेक्ट्रॉन को दोबारा से गेन कर लेगा। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ छोटा सा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है जो सॉल्यूशन में आ गया ये कहाँ से आया, एनोड से। दिस विल गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड अगेन विल बिकम न्यूट्रल, और ये इस रोड के ऊपर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। मीन सारा का सारा कॉपर इस रोड से होता हुआ इस रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा और इन इम्प्योरिटी ये धीरे धीरे नीचे गिर जाएंगी। इन इम्प्योरिटी को कहा जाता है एनोड मड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, एनोड मड। तो अब आप रिएक्शन देखिए सारी की सारी क्या लिखी हुई हैं। देखो रिएक्शन में पहले तो आप सारा पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फटाफट से देखिए, ये जो है एनोड पर क्या हुआ, ये इम्प्योर वाला था कॉपर 2 में बदल गया, और कैथोड पे क्या हुआ, यही कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो आप ये प्रिंसिपल तब यूज़ करेंगे जब आपका मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, ठीक है ना। और आप इसका प्रिंसिपल बताएंगे तो बताएंगे इम्प्योर मेटल विल एक्ट एज एनोड और प्योर मेटल विल एक्ट एज cathode. Oxidation will occur at impure metal, that is at anode, and reduction will occur at cathode. Okay, so this is all about your electrolytic refining. Second last zone refining. तो zone refining में क्या होगा, यहाँ पर ये प्रिंसिपल तब वर्क करता है जब impurities आपकी more soluble हो। देखो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ impurities, ये इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहा, इंपॉर्टेंट तो टॉपिक है ही, मैं लिख रहा हूँ ये impurities आर मोर soluble, impurities are more soluble in molten metal, पिघला हुआ जब मेटल होगा उसमें ज़्यादा होंगी ये in molten metal then solid metal। सपोज करो ये मेटल है, ये मोल्टन है, ठीक है ना, ये मोल्टन वाला है, ध्यान से समझना, और ये सॉलिड है, और इसके अंदर भी इम्प्योरिटी हैं, इसके अंदर भी इम्प्योरिटी हैं। तो मोल्टन मेटल में इम्प्योरिटी ज़्यादा सोलेबल होंगी, ठीक है ना। मोल्टन मेटल में इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, ज़्यादा सोलेबल होती हैं, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ वाला पोर्शन जो होगा उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, इवन यहाँ वाली भी इधर ही आ जाएंगी क्योंकि ये वाला ज़्यादा मोल्टन है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें करेंगे क्या, देखो जिस मेटल को आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्योर करना है, उसको आप रोड की फॉर्म में बदल लो, और उसको रोड की फॉर्म में बदलते हुए यहाँ इंडक्शन रखो। तो इंडक्शन रखोगे इतना एरिया जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटी भी मेल्ट हो जाएंगी। अब आप इस इंडक्शन को यहाँ ले आओ, तो ये वाला जो पीछे वाला एरिया है इसको हटा दो, तो ये धीरे धीरे कूल होना शुरू हो जाएगा। कूलिंग होगा तो ये धीरे धीरे किस में बदलना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में। लेकिन अब ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, अब तो ये मेल्ट हो जाएगा ना। तो मैंने अभी क्या बताया था, इम्प्योरिटी कौन से पोर्शन में ज़्यादा सोलेबल होती हैं, मोल्टन वाले में। तो ये वाली इम्प्योरिटी क्या देखेंगे भाई, यहाँ तो ये तो सॉलिड होना शुरू हो गया, तो ये इम्प्योरिटी ऑटोमेटिकली इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा डिज़ोल्व कहाँ हो रही हैं, सोलेबल कहाँ हैं, जो लिक्विड मोल्टन मेटल है उसमें, तो ये वाली इधर आ जाएंगी। अब इस इंडक्शन को हटा के यहाँ रख दो, इस एरिया में रख दो, तो अब ये वाला सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा। तो अब इम्प्योरिटी, अब ये वाला सॉलिड होना शुरू हो जाएगा ये एरिया, तो इम्प्योरिटी फिर कहाँ जाएंगी, जो लिक्विड वाला है, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा घुलती हैं। तो धीरे धीरे ये सारी इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएंगी। लास्ट में एक पोर्शन ऐसा बचेगा, इस पोर्शन को काट के अलग कर दो, क्योंकि वहाँ इम्प्योरिटी ही होएंगी, और इधर आपकी प्योर मेटल आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल तब यूज़ होता है जब इम्प्योरिटीज़ चाहें ज़्यादा सोलेबल हैं देन मोल्टन मेटल, ठीक है। और ये तब भी यूज़ होता है जब हमें मेटल हाईली प्योरिटी में चाहिए होता है, मतलब जिसके हमें मान लो सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने होते हैं, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जो हैं वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेपर, नेक्स्ट इज़ लास्ट वेपर फेज़ रिफाइनिंग। तो देखो वेपर फेज़ रिफाइनिंग में क्या करते हैं, Ni लेते हैं और जर्कोनियम लेते हैं और टाइटेनियम, ये 3 मेटल को इससे रिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। वेपर फेज़ में 2 प्रोसेस है, मोन्स और वैन आर्कल। बहुत आसान है, देखो ये आपका इम्प्योर है, मान लो यहाँ पर और इम्प्योरिटी भी है, मैंने यहाँ डाली कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड ने बनाया इसके साथ बॉन्ड, और इसको उठा के ले गया वेपर फेज़ में। किस में ले गया बच्चों, बॉन्ड बना के वेपर फेज़ में। क्यों ले गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑलरेडी ये कौन सी होती है, गैस होती है, तो ये इसको उठाकर कहाँ ले गया, वेपर फेज़ में। इम्प्योरिटी वहीं रह गई, पता ही नहीं चला इनको। फिर हमने दूसरे एरिए में ले जाकर इन सबको और हीट करा। हीट क्यों करा, क्योंकि ये वेपर फेज़ में कैसे लेके गया था, ये बॉन्ड बना के लेके चला गया था इसको ऐसे, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया था। मैंने और तेज़ हीट करा और इस इंटरेक्शन को तोड़वा दिया, निकल को इन्होंने नीचे गिरा दिया, तो फ़ायदा हो गया।
क्या फ़ायदा हो गया, गैस वापिस अलग हो गई, प्योर Ni मिल गया, इम्प्योरिटी उसी एरिया में रह गई। देखो ध्यान से देखो, पहले क्या करा हमने, ये जो इम्प्योर Ni था इसको CO के साथ मैंने 350 पे हीट किया, आई एम गेटिंग दिस कॉम्प्लेक्स, और ये वेपर फेज़ में है। फिर इसको दूसरे कमरे में ले जाके ज़्यादा हीट करा, इसने निकल को ड्रॉप कर दिया, गैस यहाँ से निकल के चली गई। तो यहाँ प्योर निकल होगा, क्योंकि यहाँ पर इम्प्योरिटी जो थी उस CO ने इस Ni को उठाया था, उन इम्प्योरिटी को नहीं उठाया। ठीक है, बस अगर आप इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह अगर आप आयोडीन कहने लग जाओ, क्या कहने लग जाओ स्टूडेंट, देखो आयोडीन कहने लग जाओ, तो ये बन जाता है वैन आर्कल प्रोसेस। बस इसमें क्या बदल गया, जो वेपर फेज़ में बदलता है वो हमने एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर बदल दिया। यहाँ Ni को किससे ले रहे थे हम, CO से। अगर CO लेंगे तो मॉन्स प्रोसेस, और अगर आप Ni लोगे तो वैन आर्कल प्रोसेस। और मॉन्स प्रोसेस किस एलिमेंट को सेपरेट करने में यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है Ni। और वैन आर्कल किस में होता है, Zr और Ti में। याद रखेंगे Zr और Ti, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम सेम है। Zr को I2 के साथ हीट करोगे, Zr(I4), इसको 1800 पे हीट कर दोगे तो I2 अलग हो गया, Zr क्या हो गया स्टूडेंट्स, अलग हो गया। तो ये कुछ मेथड हैं रिफाइनिंग के। देखो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये NCERT के कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो मैं अभी एक दो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NaCN इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो मैंने बताया था ना, ये ZnS को क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये PbS को क्या कर देता है, आगे जाने देता है, और ZnS को इम्प्योरिटी के तौर पे नीचे रोक लेता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिफाइन जोन रिफाइनिंग। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मैं आपको कल बताऊँगा, हालाँकि आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो छोटी ही वीडियो आपको मैं बना रहा हूँ वहाँ से बैठ के, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक ही लिंगम डायग्राम का अलग रह जाता है। तो ये देखिए, राइट डाउन द रिएक्शंस, सॉरी ये भी अभी मैंने नहीं करवाया है। हाँ ये देखो, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ Ni। तो आपको वो अभी जो मैंने आपको मॉन्स प्रोसेस बताया है, क्या है कि Ni will form a volatile complex with the carbon monoxide, okay, but impurity is not, and that volatile component वो क्या होगा, फिर से ब्रेक कर लिया जाएगा Ni में, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग कर ली जाएगी। ये प्रिंसिपल है, ठीक है। और मैंने ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग भी बताया था। वो कह रहा है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बताइए। तो रोस्टिंग कहाँ होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन कहाँ होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। देखो यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं लिया है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप you enjoyed this video. If you have any doubt, then you can write in the comment box or you can ask the doubt.